اعظم عمران خان نے دیا ہے، کسی بھی وزیر اعظم نے اتنے NRO نہیں دیے ہیں۔ یہ نہ صرف کلبھوشن یادو کو NRO دینے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے تو احسن اللہ احسان کو تو NRO دے دیا ہے، آزاد کروا دیا ہے۔ جہانگیر ترین کو بھی NRO ملا ہے، چینی چوری پہ NRO، آٹا چوری پہ NRO، تیل کی چوری پہ NRO۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن حکومت پر چڑھ دوڑی، کلبھوشن جادو سمیت غیر ملکیوں کو سزا کے خلاف اپیل کا حق دینے کا آرڈیننس پیش نہ ہونے دیا، معاملہ مؤخر ہو گیا۔ بلاول بھٹو خوب بھڑکے، کہا کلبھوشن کو سہولت دینے کے لیے پاکستانی قانون کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ سینٹ میں کلبھوشن کو ریلیف دینے کا معاملہ اٹھا تو آج آرڈیننس جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی نے کلبھوشن اور احسان اللہ احسان کو NRO دیا۔ جہانگیر ترین، چینی اور آٹا چوروں کو بھی NRO دیا جاتا ہے۔ جتنے NRO عمران خان نے دیے، تاریخ میں کسی نے نہیں دیے۔ شیریں مزاری نے کلبھوشن کے معاملے کا ذمہ دار سابقہ حکومت کو ٹھہرا دیا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں بولی، نون لیگ نے اپنے دور حکومت میں عالمی عدالت کے دائرہ اختیار کو تسلیم کیا، اسی وجہ سے ہمیں اب فیصلہ ماننا پڑ رہا ہے۔ ایوان کے باہر مراد سعید بھی خوب گرجے، کہا بلاول بھٹو کلبھوشن کے معاملے پر ایوان میں بحث کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم جواب دیتے ہیں تو وہ 9-2-11 ہو جاتے ہیں۔ سوال کیا، بتائیں ریمن ڈیوس کو کس نے باہر جانے کی اجازت دی؟ حکومت کیوں ایک بھارتی جاسوس کی سہولت کار بنی ہوئی ہے؟ وزیر اعظم کیوں پاکستانی غیرت کا سودا کر رہے ہیں؟ لیگی رہنما خواجہ آصف کلبھوشن کے معاملے پر برس پڑے، بولے بتائیں آج کون مودی کا یار ہے؟ کبھی تجارت کھولی جا رہی ہے تو کبھی کلبھوشن پر آرڈیننس نکل رہے ہیں۔ آج حکومت کیوں ان کے آگے سجدہ کر رہی ہے؟ پاکستان عالمی عدالت انصاف کے 17 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ 2 مرتبہ کلبھوشن کو قونصلر رسائی فراہم کر چکے ہیں۔ تیسری قونصلر رسائی اور انسانی ہمدردی کے طور پر کلبھوشن کے والد سے اس کی ملاقات کی پیشکش بھی کی، تاہم بھارت نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ ایٹمی ہتھیاروں کے تحفظ میں پاکستان نے بھارت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ درجہ بندی میں پاکستان کی پوزیشن میں نمایاں بہتری، سب سے زیادہ مؤثر اقدامات پر امریکی ادارے نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو نے پاکستان کی درجہ بندی میں 7 پوائنٹس کا اضافہ کر دیا۔ NTI انڈیکس کی رپورٹ میں تسلیم کیا گیا کہ پاکستان نے ایٹمی ہتھیاروں کی سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنایا ہے۔ بھارت کی جانب سے ہمیشہ دوہرا معیار سامنے آیا، شائننگ انڈیا کے امیج کا بیڑا غرق ہو چکا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی برہم، کہا ایران نے بھی چابہار منصوبے سے بھارت کو باہر نکال دیا۔ اقوام متحدہ کے صدر پیر کو پاکستان آ رہے ہیں، انہیں خطے کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ ذی الحج کے چاند کے نرازے پر مفتی منیب الرحمان وفاقی وزیر فواد چودھری پر برس پڑے، کہا جس شخص کو سائنس کا علم نہیں وہ سائنس کا امام بنا ہوا ہے۔ پوچھا چاند کے سائز سے تاریخ کا تعین کس کتاب میں لکھا ہے؟ یہ سائنس اور مذہب دونوں اعتبار سے پہلی کا چاند تھا۔ پاکستان میں کورونا کا زور ٹوٹنے لگا، 24 گھنٹے میں 32 اموات ہوئی، ایک دن میں 1763 نئے کیسز رپورٹ۔ سندھ میں 1,15,000، پنجاب میں 91,000، خیبر پختونخوا میں 32,000 اور بلوچستان میں 11,000 کے قریب افراد متاثر۔ مجموعی طور پر 2,69,191 افراد مہلک مرض میں مبتلا، 2,13,000 سے زائد افراد صحتیاب ہو چکے۔ بڑی عید پر ملیں گی 3 چھٹیاں، وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عید الاضحیٰ پر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو سرکاری چھٹی ہوگی۔ کم چھٹیوں کا مقصد تجارتی سرگرمیوں میں کم سے کم وقفہ اور معاشی نقصان سے بچاؤ ہے۔ کورونا کا پھیلاؤ بھی روکا جا سکے گا۔ پنجاب میں 31 پبلشرز کی کتابوں پر پابندی عائد۔ MD ٹیکسٹ بک بورڈ کہتے ہیں نجی اسکولوں میں پڑھائی جانے والی 100 کتابیں بین کر رہے ہیں۔ ان کتابوں میں قومی ہیروز اور ملک کی سالمیت کے خلاف باتیں ہیں۔ آکسفورڈ کی بیشتر کتب میں بھارت کا مثبت امیج دکھایا گیا، کئی کتابوں میں انتہا پسندی کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے۔ سونے کی خریداری اب سپنے جیسی لگنے لگی، فی تولہ قیمت 1,17,300 روپے پر پہنچ گئی۔
10 ग्राम सोना भी तारीख में पहली बार 1 लाख रुपए से जायद का हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत 17 अगस्त तक मंजूर कर ली। पेशी के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में शहबाज शरीफ बोले, नून लीग को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फॉरेन फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास 6 अगस्त तक मुलतवी। अकबर एस बाबर का पीटीआई पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्जाम। कहा 6 साल गुजर गए, पैसा कहां से आया, ये तफसीलात जमा नहीं करवाई गईं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों का वार। पारा चनार के तूरी बाजार में धमाका, 17 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 2 की हालत तशवीशनाक। वाक़े के बाद अवाम मुश्तइल। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। गैर कानूनी तामीरात केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल डैम के किनारे हाल ही में तामीर होने वाले पाकिस्तान नेवी सेलिंग क्लब को सील करने का हुक्म दे दिया। मामला विफाकी काबीना के सामने रखने की भी हिदायत। बिलियन फी सुनामी मंसूबे में बेपनाह करप्शन का इंकशाफ। महकमे ने 35 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए। अफसरान और मुलाजमीन पर जुर्माने भी आए। दस्तावेजात के मुताबिक मुलाजमीन ने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके मतलूबा तादाद में पौधे नहीं लगाए, कम तादाद में पौधे लगाकर खजाने से ज्यादा पैसे वसूल किए। कोरोना वायरस के बायस सिविल एविएशन अथॉरिटी को अरबों का नुकसान। आलमी फिजाई बंदिश और परवाजों की कमी से CAA शदीद मुतासिर। 4 महीनों में पाकिस्तान के सबसे कमाऊ पूत इदारे को रिकॉर्ड खसारे का सामना। 15 मार्च से 15 जुलाई तक का मजमूई खसारा 30 अरब 50 करोड़ से तजावुज कर गया। कोरोना वायरस के वार दुनिया भर में जारी। अब तक हलाकतें 6,31,000 से तजावज कर चुकी। 1,54,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। भारत शदीद मुतासरा ममालिक में तीसरे नंबर पर। रियासत झारखंड में बढ़ते केसेस के बायस बड़ा फैसला, मास्क पहनने की पाबंदी लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद। और तुर्की में तारीखी अहमियत की हामिल मस्जिद आया सूफिया कल से इबादत के लिए खोली जा रही है। मस्जिद में पहली नमाज की अदायगी के लिए तैयारियां जारी। सदर रजब तैयब एर्दोगान भी आया सूफिया मस्जिद में नमाज जुमा अदा करेंगे। कराची वालों हो जाओ तैयार, मॉनसून का तीसरा सीजन आने वाला है। महकमे मौसमियात ने 25 से 26 जुलाई के दरमियान बारिश की पेशगोई कर दी। बारिश का ये सिलसिला समंदर की जुनूब मगरबी हवाओं को भी मुतासिर कर सकता है। ईद उल अज़हा में 9 दिन बाकी। मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच गई। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोग जानवरों की खरीदारी में मसरूफ। लाहौर में राजू और टंडो अलायार में टिकटॉक बैल की धूम। मंडी जाए मगर एहतियात के साथ, नौसरबाजों से रहें होशियार। वजीराबाद में बेवपारी के भेस में फ्रॉडिये ने शहरी को चूना लगा दिया। शहरी खुशी खुशी मोटा ताजा दुम्बा खरीद कर घर लाया तो मालूम हुआ वो तो कमजोर सा मेंढा है जिस पर मसनूई खाल चढ़ा रखी थी। हम कहते रहे कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, मगर जितने एनआरओ इमरान खान ने दिए तारीख में किसी ने नहीं दिए। पीटीआई ने कुलभूषण और एहसानुल्लाह एहसान को एनआरओ दिया। जहांगीर तरीन, चीनी और आटा चोरों को भी एनआरओ दिया गया। कुलभूषण को सहूलत देने के लिए पाकिस्तानी कानून का सहारा लिया जा रहा है। सेनेट में कुलभूषण को रिलीफ देने का मामला उठा तो आज ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। जितने एनआरओ वजीर आज़म इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आज़म ने इतने एनआरओ नहीं दिए हैं। ये ना सिर्फ कुलभूषण यादव को एनआरओ देने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये बात फिर सेनेट में उठा और पूछा कि आप क्यों कुलभूषण यादव को रिलीफ दे रहे हैं, तो फिर उन्होंने आज हमारे सामने ये ऑर्डिनेंस ले किया है। इन्होंने तो एहसानुल्लाह एहसान को तो एनआरओ दे दिया है। आज भी
वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप तकरीर करते हो तो फिर एहसानुल्लाह एहसान से धमकी आता है। आज से नहीं, शुरू दिन से इन दहशतगर्दों से मिले हुए हैं। वो कितने NROs देंगे जनाब स्पीकर? जहांगीर तरीन को भी NRO मिला है, PRT मंसूबा को भी NRO मिला है, आलम जब्बा पे भी NRO है, चीनी चोरी पे NRO, आटा चोरी पे NRO, तेल की चोरी पे NRO। बिलावल भुट्टो कुलभूषण के मामले पर ऐवान में बहस क्यों नहीं करते? मुराद सईद का बिलावल भुट्टो को फिर मनासने का चैलेंज। कहा, जब हम जवाब देते हैं तो बिलावल भुट्टो 9-2-11 हो जाते हैं। क्या ये जमहूरी रवैया है? बिलावल भुट्टो ट्विटर खेलते हैं, जवाब सुनने की हिम्मत नहीं होती। मुराद सईद ने कुलभूषण के मामले का वाहिद हल कानून साजी को करार दिया। हमने हमेशा कहा कि जनाब पार्लियामेंट के अंदर बहस करनी है तो फिर भागना मत। अगर आपने बहस करनी है, आपने सही अंदाज में डिबेट करनी है, तो आप किसी मीडिया चैनल का नाम ले लें, हम वहां पे हाजिर हो जाएंगे। बड़े दबंग अंदाज में तकरीर कर रहे हैं और जैसी उन्हें इल्म होता है कि अब तो जवाब देने के लिए कोई मौजूद है, वो खुद कोरम पॉइंट आउट करके चले जाते हैं। जो कोरम पॉइंट आउट करता है उसको हाउस में गिनती तक बैठना होता है। लेकिन खौफ इतना था कि तकरीर के इख्तिताम पे स्पीकर साहब मैं कोरम पॉइंट आउट कर रहा हूं और फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। क्या ये जमहूरी रवैये हैं? अगर ICJ में और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अगर कोई कानून साजी होती है, पाकिस्तान की बेहतरी होती है, उसकी जरूरत होती है, तो उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की आपको पड़ी है। हुकूमत की भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव समेत गैर मुल्कियों को फौजी अदालत की सजा के खिलाफ अपील का हक देने के ऑर्डिनेंस को कौमी असेंबली में पेश करने की कोशिश को अपोजिशन ने सबोताश कर दिया। हुकूमत की जानिब से किसी वजीर ने अभी ऑर्डिनेंस पेश करना भी शुरू नहीं किया था कि अपोजिशन ने हुकूमत पर चढ़ाई कर दी, जिसके बायस ये मामला फिलहाल मौखर हो गया। आपको बताएं कि हुकूमत की भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव समेत गैर मुल्कियों को फौजी अदालत की सजा के खिलाफ अपील का हक देने के ऑर्डिनेंस को कौमी असेंबली में पेश करने की कोशिश को अपोजिशन ने आज सबूताश कर दिया। Ordinance to be laid before the National Assembly Rule 170 Clause 1 and Article 89. जी ख्वाजा आसिफ साहब। कुलभूषण के मामले पर अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमारे लिए तो कुलभूषण को गाली बना दिया गया था। आज हुकूमत क्यों उनके आगे सजदा कर रही है? आज कौन मोदी का यार है? हुकूमत क्यों एक भारतीय जासूस की सहूलतकार बनी हुई है? वजीर आजम क्यों पाकिस्तानी गैरत का सौदा कर रहे हैं? हुकूमत कभी तिजारत खोल रही है और कभी कुलभूषण पर ऑर्डिनेंस निकाल रही है। एक दहशतगर्द जिसने हमारे वतन में दहशतगर्दी का बाकायदा मंसूबा, बाकायदा एतराफ किया हुआ है, हमने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी की हुई है। आज क्या बात हो गई है कि हम बाकायदा कानून बना के उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जब हम लोग हुकूमत में थे तो कुलभूषण यादव एक गाली थी, हमें ताने दिए जाते थे कि मोदी का यार है। आज ये आइटम नंबर 4 जो है ये ला के कौन किसको अपीस कर रहा है, कौन जो है घुटनों के बल जाके उनको जो है उनके आगे सजदा रेज हो रहा है। ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है? है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन, पीर मक्तल बना हुआ है। हम कभी ट्रेड उनके साथ खोल रहे हैं, कभी कुलभूषण को लाडला बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? वाई आर वी अपीजिंग इंडिया? क्या इंटरेस्ट है? मोदी का कौन यार है? आज बताया जाए कौन जो है नक्सीरे निकाल रहा है, कौन जो है सजदा रेज़ है आज मोदी के आगे? क्यों सौदा कर रहे हैं पाकिस्तान की गैरत का और पाकिस्तान की हमीयत का? क्यों बेच रहे हैं पाकिस्तान की इज्जत को? शीर मज़ारी ने कुलभूषण के मामले